جو کوکو کولا آپ پیتے ہیں یہ سب سے پہلے جو ہے وہ بیماری کی دوائی کے طور پہ استعمال ہوا. ڈرگز جو ہے یہ ایک نسل کو نہیں آنے والی کئی نسلوں کو اپاہج کرتی. اللہ تعالیٰ نے ہمت دے کہ یہ کام کریں اور لوگوں کے گھر کی خوشیاں لوٹیں. جناب منیر نادر صاحب کے لیے قومی نیشنل ایوارڈ کمیٹی حکومت پاکستان کی طرف سے تمغہ پاکستان کا اعلان کرتا ہوں. آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا دے، ہماری این جی او کو اتنا دے کہ ہم الگ سے ان لوگوں کے لیے فری آف کاسٹ ایک ہاسپٹل بنا سکیں. فرسٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ ہے کیا، اس سمجھ کی بات کیا ہے. خالی براؤن شوگر کو دیکھنی ہے، پاؤڈر والی کوکین دیکھ لی جائے، لیکن دس از دا ماڈرن ون. 3-4 دوائیاں ہیں. بچہ کہ میرے سر میں درد ہو رہی ہے اور 3-4 دوائیاں لیتا جا رہا ہے، آپ سمجھیں وہ اپنی طبیعت ٹھیک کر رہا ہے، مے بی وہ ایسٹیسی کا نشہ کر رہا ہے. تو یو شوڈ انڈرسٹینڈ اٹ کہ یہ ڈرگز آپ کو خود دیکھنے ہیں، پوچھنے ہیں بیٹے یہ تو دوائی کھا رہا ہے تو کیوں کھا رہا ہے، یہ کھا رہی ہے تو کیوں کھا رہی ہے، تو پوچھیں. ہم لوگ کیا ہوتا ہے ہم اپنی مصروفیت کی وجہ سے اپنی فیملی کے اندر توجہ نہیں دیتے. تو سو this was the reason I was using these names here. آگے چلیں. ہسٹری آف ایسٹیسی. ایسٹیسی بھی ڈیولپ ہوئی ہے ایک میڈیسن کے طور پہ. ہر چیز شروع کئی دفعہ نیگیٹو سے ہوتی ہے اور ختم پازیٹیو پہ ہوتی ہے، اور کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو پازیٹیو سے شروع ہوتی ہے اور ختم نیگیٹو پہ ہو جاتی ہے. لائک اگر میں ایگزامپل آپ کو دوں تو 1875 سے 1890 کے درمیان جو کوکو کولا آپ پیتے ہیں یہ سب سے پہلے جو ہے وہ بیماری کی دوائی کے طور پہ استعمال ہوا. کوک دوائی کے طور پہ استعمال کی گئی تھی. اس کی ریسرچ ہوئی تھی کہ جب بندہ بیمار ہوگا تو اسے کوک پینے کے لیے بیماری میں دی جائے گی. اس کا آج آپ یوز دیکھیں کہ آپ کھانا نہیں کھاتے ہیں اور آپ کوک پیتے ہیں. تو وہ کیا کرتی ہے، وہ آپ کی ہڈیوں کا ڈاکو ہے، وہ آپ کی ہڈیوں سے کیلشیم کھاتا ہے. جیسے ہی کوک کا فارمولا آپ کے معدے سے ٹکراتا ہے آپ کا بلڈ کیریئر اسے جب ہڈیوں تک لے کے جاتا ہے، آپ کے ریڈ بلڈ سیل جو آکسیجن کیریئر ہیں اس کے اوپر آپ لوڈ ڈال دیتے ہیں. ایسے جیسے ایک ویگن جس میں 20 کی کیپیسٹی تھی آپ نے اس ویگن میں 40 لوگ ٹھوس دیے. تو آپ کو پتا ہو کہ یہ کوک ایک ڈرگ ہے اور ہم سب اس ڈرگ کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں. میں کسی کوک کمپنی کے خلاف نہیں ہوں لیکن بتانا میرا مقصد ہے آپ کو. دس از the forum where we will talk about the awareness stuff, nothing else. یہ 1912 میں ایک جرمن فارماسیوٹیکل کمپنی اور جس کا جو فارماسسٹ تھا وہ مرک کاگا. تو 1912 میں یہ ڈیولپ کی گئی تھی ایسٹیسی ایک بیماری کے علاج کے لیے. پھر آگے چلی. پھر ایک الیگزینڈر شولگین نامی آدمی تھا، اس نے ایسٹیسی کا تجربہ کمرشل لیول پہ اس ڈرگ کو لانے کے لیے کیا. یہاں جب تجربہ ہوا 1912 میں تو کچھ لوگوں پر وہ تجربہ کرنے کے بعد فارماسسٹ تھا اس نے دیکھا کہ اس کے کچھ امپیکٹ نیگیٹو کی طرف جا رہے ہیں، اس نے روکا. تو یہ کمرشل آدمی الیگزینڈر شولگین جو تھا سائیکو فارماکولوجسٹ، دماغ کو سمجھنے والے فارماسسٹ یا آپ سائیکولوجسٹ کی بات کریں، اس نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کے بیک یارڈ میں اس کا ایک تجربہ کیا اور یہ پاپولر ہو گئی 1970 سے 80s میں. یہ ایسٹیسی تھی مرک کاگا اور اس آدمی نے وہ ٹھوس دی آپ لوگوں میں اور وہ ماڈرن نشے کی شکل میں آپ لوگوں کے گھروں تک پہنچ گئی جن کے گھر آج نقصان ہو رہا ہے. میڈیسن نے وہ ڈرگ کی پازیٹیو سے شروع ہوا، نیگیٹو امپیکٹ میں یا کہ لوگ اپنے گھروں کی تکلیفیں، ٹینشنیں، اپنے آپس کے مسائل ان کو بھگتانے کے لیے، انہیں ختم کرنے کے لیے اس ڈرگ کے سہارے سے آ گئے. اور یہ کس طرح، میں نے آپ کو ایگزامپل دیا، اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی برین کو جب ہٹ کرتی ہے تو آپ کا جو رائٹ والا ہیمسفیئر ہے، رائٹ والا وہ سارے ایموشنل کام کرتا ہے، لیفٹ والا آپ کے لاجیکل کام کرتا ہے، میتھمیٹکس کرتا ہے. تو یہ رائٹ والا ریدم میں آ جاتا ہے، آپ اپنے غموں کو بھول جاتے ہیں، آپ اس کنڈیشن سے ہی باہر چلے جاتے ہیں اور آپ فیل کرتے ہیں یار یہ ڈرگ بہت زبردست ہے، یار اس نے تو مجھے میری ٹینشنوں سے ہی رہا کر دیا. جب آپ فیل کرتے ہیں آپ کو وہ دوبارہ آپ کی میموری سے یاد آتا ہے یار مجھے تو میرے گھر سے آج جو ہے نا میرے ابا جان نے جو ہے نا وہ آج تھپڑ مارا تھا، میں پھر اس ڈرگ کو استعمال کروں گا، میری بڑی بے عزتی. تو یہ آپ یہ کلبز اور فیسٹیوز کا جو ہے ساری جانے کا مقصد ہے، یہ ایسٹیسی ایک ماڈرن نشہ ہے. اس نے یہ بتایا کہ میرا بچہ جو ہے وہ اکلوتا، اسے میں گاؤں سے پڑھانے کے لیے لے کے آئی اور میں نے بڑے شوق و ذوق سے اسے کالج میں ایڈمیشن
दिलवाया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी खुशियों को नजर लग गई और वो बच्चा कॉलेज में जाते ही गलत सोसाइटी के बच्चों में बैठ गया। माँ का इकलौता बच्चा था, वो तो खुशियाँ भरे दिन देखना चाहती थी कि वो आए, कमाए, बड़ा हो, लेकिन ऐसा ना हो सका। और वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता पहले सिगरेट पीना शुरू हुआ। सिगरेट पीने के बाद उसने जो है वो अफीम शुरू कर दी। ये एक हकीकी बात हम आपको बता रहे हैं एक स्क्रिप्ट की सूरत में। उसने जब अफीम शुरू की, इसके साथ ही उसे चर्च के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंजेक्शन पे आ गया और इंजेक्शन के बाद वो बच्चा जो है वो पाउडर पे आया, लास्ट स्टेज पाउडर। इसके बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। माँ ने बहुत कोशिश की, घर के बर्तन बेच दिए, लेकिन आखिर वो उसको ना बचा सकी। तो ये एक छोटी सी जो है अवेयरनेस, एक सबक जो हम आपको स्क्रिप्ट के थ्रू देना चाहते हैं कि माँ की जो आहो फगा मैंने कैंप में सुनी, वो देखिए। मेरे लाल, ये क्या हो गया तुझे? मेरे लाल आंखें खोल। लाल, इस नशे ने तेरा बुरा हाल कर दिया। कहाँ जाओगे बे? कैसे जियोगे बे? मेरे लाल, मैं कैसे जियोगी? इस नशे से तुझे इस मौत तक पहुंचा दिया। मेरा पैगाम है आप लोगों से, जिनकी औलाद, जिनके बिया, जिनके भाई इन नशे तक जा रहे हैं, उनको रोके, क्योंकि ये नशा किसी का नहीं बनता। ये नशा घरों के घर उजाड़ देता है, जैसे मेरा लाल। मेरे लाल को बिगा, मेरे लाल को उजाड़ दिया। ये एक पैगाम था एक माँ का जो मुझे कैंप में मिला। औलाद के बारे में हम बड़े बेखबर होते हैं कि हमारा बच्चा बाइक बहुत तेज चलाता है, हमारा बच्चा कमरे में घुस जाता है और सारा दिन निकलता नहीं। कभी हमने ऐसी तवज्जो नहीं दी कि जो अपने वालिदैन मेहनत मजदूरी करके शाम को लौटते हैं, तो खुदारा आप अपने बच्चों पे भी तवज्जो दीजिएगा। 1 घंटा उनके साथ गुजारिएगा ताकि आपके इल्म में हो कि बच्चा किसी मंशियात में तो नहीं वो इस्तेमाल में शुरू हो गया। बराए करम हमारी आपसे गुजारिश है कि आप अपने वालिदैन की हैसियत से, वालिद की हैसियत से, वालदा की हैसियत से बच्चों को ज़रूर देखिएगा। बच्चों को निगहबानी की ज़रूरत होती है। हम क्रिकेट के लिए भेज देते हैं, घर से पता चलता है क्रिकेट खेल रहा है, बाद में पता चलता है उसे पुलिस पकड़ के ले गई, वो सिगरेट पी रहा था। तो खुदारा आप हम सब पे फ़र्ज है कि आप अपने बच्चों पे तवज्जो दें और उनकी निगरानी करें। ऐसे सेमिनार्स, वर्कशॉप होने चाहिए जिसमें अवेयरनेस की प्रोग्राम्स हों और हमारी जनरेशन को, जनरेशन टू जनरेशन, ये बात जाननी चाहिए कि ड्रग्स जो है ये एक नस्ल को नहीं, आने वाली कई नस्लों को अपाहज करती है। नशा किसी के करने को दिल नहीं चाहता। इंसान डिप्रेशन में जाता है और आजकल का जो स्पेशली जो माहौल घरों का है वो बहुत अजीब है। उसको बेहतर करने की जरूरत है। भाई की बहन से नहीं बनती, बाप की बेटे से नहीं बनती, बेटे की बाप से नहीं बनती। घर के अंदर तफरके शुरू हो गए जो पहले नहीं थे। पहले नशा भी होता था तो एक हुक्का होता था तो पूरा पिंड होता था। नशे की बात करें तो ज़हन में नेगेटिव बातें और नेगेटिव पहलू शुरू हो जाते हैं।
नशा रब के साथ उसकी इबादत में भी होता है। नशा होली बाइबल कह दूं या होली कुरान की रिसाइटिंग में भी होना चाहिए कि आपको नींद ना आए जब तक आप होली कुरान की तिलावत ना करें। नशा माँ बाप की फर्मा बरदारी में होना चाहिए। नशा बहन भाई की मोहब्बत में होना चाहिए। नशा अपनी बीवी के साथ मोहब्बत के साथ रहने का होना चाहिए। लेकिन हमने अपने ईमान को नशे में बांट दिया। हमने एक धुएं में दीन को उड़ा दिया, एक धुएं में मोहब्बत को उड़ा दी और एक सिगरेट के कश में सब कुछ बेच दिया। ये बड़ा खुश्क सा एक मंशियात। हम नशे से बच्चों को बाज तो कर सकते हैं, लेकिन यकीन करें कि क्योंकि मैं खुद एक्साइज एंड टैक्सेशन की मेंबर हूँ, एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर आसिफ साहब के साथ काम कर रही हूँ। हमारे जो सदर हैं वो डीसी लाहौर हमारे साथ होती हैं। हर मीटिंग्स में हम लोग डिस्कस करते हैं कि आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें इतना दे, हमारी एनजीओ को इतना दे कि हम अलग से इन लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक हॉस्पिटल बना सकें। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैडम शहजाद मुनीर साहिबा की और उनकी पूरी टीम की, उनकी पूरी एनजीओ जो लोग भी उसमें शामिल हैं और जो भी स्टेज में हैं, मोहतरम अजीज शेख साहब और आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ताकि देखिए इन्होंने बड़ा ऑनर दिया, इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी कि उन्होंने इस अवार्ड से जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो मुझे नवाजा है। थैंक यू वेरी मच। मेरी दुआ है कि अल्लाह करे जिस मकसद के लिए ये काम कर रही हैं, नारकोटिक्स इनका जो बेहतरीन, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रही थी कि उससे बचाव के लिए ये जो वर्क कर रही हैं उसमें अल्लाह बरकत डाले और ये मजीद अल्लाह ताला इन्हें हिम्मत दे कि ये काम करें और लोगों के घर की खुशियाँ लौटें। तो नशा जो है वो, ये नशा एक लानत है, वो ख़त्म हो और लोगों के जो खुशियाँ हैं वो लौटें। और मैडम को अपनी दुआओं में मैं भी याद रखूँगी, आप सब भी याद रखिएगा, क्योंकि ये इट्स अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन, इनका बहुत एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस मामले में, इस मुआशरे में, और ये बहुत बड़ी बात है। सो नाइस ऑफ यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। मैं अपने अजीम दोस्त जनाब मुनीर नादर साहब के लिए कौमी नेशनल इबादत कमेटी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जनाब मोहतरम मुनीर नादर साहब के लिए तमगा पाकिस्तान का ऐलान करता हूँ। इंशाअल्लाह मेरी बहन 14 अगस्त को आके जनाब मैडम शहजाद मुनीर नादर साहबा आके मोहतरम जनाब मुनीर नादर साहब का तगमे पाकिस्तान अवार्ड खुद वसूल करें। ओह थैंक यू सर। ये तो हसरत ले के मेरे मियाँ इस दुनिया से ही चले गए, लेकिन मैं इस मकसद में कामयाब हो गई हूँ क्योंकि शायद मुझे अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी इसीलिए दी थी कि मैं पीछे ये मेहनत और काविश करती रहूँ। सर बहुत शुक्रिया, अल्लाह इसका आपको अजर देंगे।
नाज़रीन, आज अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में यहाँ हम मौजूद हैं हमारा जस्ट वन टीवी के साथ। यहाँ पे हाल नंबर 3 में प्रोग्राम हुआ है नारकोटिक्स पे, जिसमें बताया गया है कि कैसे आप लोगों को बचा सकते हैं, किस तरह अपने बच्चों को आप कोई ऐसी तरबियत, ऐसी तालीम या इस किस्म की उनके ऊपर आप चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं ताकि वो इस नारकोटिक्स जैसी लानत से वो अपने आप को बचाएं और माशरे के एक अच्छे और मुफीद शहरी बने। मेरे साथ जनाब मौजूद है मोहतरम चौधरी अब्दुल सत्तार साहब। ये रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं मगर अब हमारे साथ वकालत ही करते हैं। तो सर, आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा है। मैडम शहजाद की जो है उसमें बड़ी ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है और 2 बातें ख़ास तौर पे मैंने नोट की। एक तो वो इस्लाही प्रोग्राम था जी, दूसरा इन्फॉर्मेटरी था। उनके जो सेक्रेटरी हैं प्रोफेसर जवाद साहब, उन्होंने ज़बरदस्त उसमें लेक्चर दिया है जिसमें ये ड्रग्स की इब्तिदा कैसे होती है, कैसे बंदा उस पर एडिक्ट हो जाता है और कैसे फिर वो जान नहीं छुड़ा सकता उस पर। वो बड़ा इन्फॉर्मेटरी था। हमने भी अरसा तक ये नारकोटिक्स केस डील किए हैं और लेकिन उन्होंने चंद एक ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है जो हमें भी नहीं पता था और एक खाका पेश किया उन्होंने, मैडम ने जो करवाया है वो बड़ा ज़बरदस्त था। वो हमारे लिए और पेरेंट्स के लिए ख़ास तौर पे था कि पेरेंट्स अपने बच्चों पे कैसे नज़र रखें और अगर नहीं रखते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो बड़ा मज़ेदार था। आपकी भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, आपने ये सब लीड किया सारे अपने ग्रुप को, तो आके पार्टिसिपेट किया, तो कीप इट अप। सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो ताहिर असलम कुरैशी साहब हमारे सीनियर लॉयर हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। तो आज ये भी इन्होंने थ्रू आउट प्रोग्राम देखा है। तो सर, कैसा प्रोग्राम को पाया आपने? ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, जिन्होंने नारकोटिक्स की बाबत काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी, एजुकेट किया लोगों को कि इसके क्या बुरे असरात हैं और जिससे कि इसको अपना रोकना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने इस बात पे ज़्यादा जोर दिया है कि ये नारकोटिक्स जो है ये हमें ख़त्म कर रही है अखलाकी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, और ये ख़त्म कर रही है। इसके लिए हमें जो है ना ये कोई मनसूबाबंदी करनी चाहिए। हाँ जी, कौमी सतह पर, इंटरनेशनल सतह पर इसको करना चाहिए ताकि ये ख़त्म, बिल्कुल टोटल ख़त्म की जाए। हाँ जी, बस। क्योंकि ये हमारी नस्लों को सेव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे तो अब गवर्नमेंट ने ये एक अच्छा ये जो उन्होंने तरीका लॉन्च किया है कि हर स्कूल में, हर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी लेवल पे उन्होंने इस किस्म की ये सारी एक लोगों को अपॉइंट किया ताकि वो देखें और वहाँ पे वो, जैसे कि पहले ऐसे होता था कि स्कूलों में मुनशियात बेची जा रही हैं या कॉलेजेस में दी जा रही हैं, यूनिवर्सिटी में दी जा रही हैं, तो उसके लिए बड़ा स्पेशल उन्होंने एक शोबा बनाया है जो कि इसको वॉच आउट करेगा और इससे बचाव करेगा। ये बहुत अच्छी बात है। और जनाब ये मेरे साथ जनाब मोहतरम खालिद जमान काकड़ साहब तशरीफ फरमा खड़े हैं मेरे साथ। इनसे पूछती हूँ कि सर, इन्होंने भी पूरा प्रोग्राम देखा है तो इन्हें वो कैसा प्रोग्राम लगा है और क्या फील करते हैं कि वाकया उसका एक अच्छा पॉजिटिव असर हुआ है हम सब पे, और ऐसा होना चाहिए कि पेरेंट्स को ऐसे ही अपने बच्चों को यानी उन पे नज़र तो रखें एटलीस्ट। जी सर, प्लीज़। हमारे लीडर हैं मैडम नरगस नाहिद तारक, उन्होंने हमें पाबंद किया था कि आज ज़रूर आप आएँ और यहाँ पर आके हमें बहुत खुशी हुई कि बाद लोगों ने अपनी ज़िंदगी लगा दी है मुआशरे की इस्लाह के लिए। और जिस तरह अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली है वो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारे मुआशरे के लिए और इसके लिए मैं उन्हें जो हैं प्रोप्राइटर या जो भी इनके हैं उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच सर। ये मियाँ जावेद इकबाल साहब मेरे साथ खड़े हैं। जी सर जी, आपके ख्याल में कैसा था प्रोग्राम? ये प्रोग्राम बहुत अच्छा था कि अवेयरनेस के लिए ज़्यादा काम करना चाहिए। अगर आप माशरे में निगाह डालें तो आपको पता चलेगा कि ख़ानदान के ख़ानदान, घर के घर उजड़ गए और तबाह हो गए। उन लोगों को पता ही नहीं चला कि वो उन्होंने अपने घर कैसे तबाह कर लिए। और ये हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और ऐसे प्रोग्राम मरतब करें ताकि इस लानत को इस मुल्क से बाहर किया जा सके। राना सईद अहमद खान साहब सीनियर लॉयर हैं, तो सर आप कुछ कहिएगा इस बारे में। आज का प्रोग्राम 3 लिहाज से बहुत अहम है। पहला तो ये था कि उन्होंने प्रोग्राम में ये बताया वालिदैन को कि बच्चों को किस तरह नशियात से दूर रखा जाना चाहिए। एक आदमी नशा करता है और उसका असर सारी फैमिली पर पड़ता है। तो इसके अलावा उन्होंने कुछ तजावीज़ भी उन्होंने पेश की कि किस तरह जो लोग नशे में मुब्तला हो चुके हैं उनका इलाज किस तरह किया जाए,
क्या क्या NGO किया जाए? मियाँ सलाउद्दीन एडवोकेट जी, जो एक यूनिक इसकी बात थी, आम तौर पे इस तरह के एयर कंडीशनड हॉल्स में जो प्रोग्राम होते हैं वहाँ अमीर लोग आते हैं, लेकिन मैडम शहजाद मुनीर ने इसका बहुत अच्छी तरह इसको इंतज़ाम किया। उसने इसी तरह ही स्लम्स के लोग भी बुलाए थे, जहाँ पे कि ये बातें उनके माहौल में बहुत कम इफ़ेक्टिवली की जाती हैं। यहाँ एक ऐसा माहौल था, एक तो एंटरटेनमेंट थी, आर्टिस्टों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो वो एक बड़ी इंटरेस्ट क्रिएट हो गई इस प्रोग्राम में। तो एट द सेम टाइम वो जो स्लम्स में लोग रहते हैं, गरीब हैं, उनको उतनी ही रिस्पेक्ट दी गई जितनी आम जो अच्छे वेल्दी लोग हैं उनके। तो इस लिहाज से मैं कहूँगा कि ये बड़ा यूनिक था। इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए। ये प्रोफेसर राना जमील खान साहब, सर आप भी कहिएगा कुछ इस बारे में। एरियंस जब इंडिया में आए सब कॉन्टिनेंट में, ये नशा उस वक्त शुरू होता है और इसको हम शुरू में सोमरस कहते थे। सोमरस से लेके आइस तक ये सफ़र जो है पहुंच चुका है और ये सिस्टम नशा और एंटी नशा सदियों से चला आ रहा है। अल्टीमेटली मैं ये कहूँगा कि नशा बुरी बात है। सफ़र बहुत लंबा है लेकिन नशा बुरी बात है। आज के जो बैनर के ऊपर यही फिक्रा था जिससे मैं बहुत मुतासर हुआ। टोटल प्रोग्राम बड़ा अच्छा था, लाइट फॉर द अदर्स, एक फिक्रा लिखा हुआ था, लाइट फॉर द अदर्स। यही लाइफ है, बस और कुछ नहीं है। अगर आप किसी को रोशनी देते हैं, दिस इज़ द लाइफ, और इसको हमें रोशनी देनी चाहिए, हर फर्द को रोशनी देनी चाहिए। और हर मज़हब में लिखा हुआ है लाइट फॉर द अदर्स, इट्स नॉट फॉर वन फॉर द अदर्स। तो लिहाजा मैं दोस्तों से भी गुजारिश करूँगा अपने हद तक लाइट फॉर द अदर्स। थैंक यू। बहुत अच्छी बात की सर, बड़ी खूबसूरत बात की है। तो आज का हमारा ये प्रोग्राम जनाब यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह ताला फिर कभी किसी और अच्छे प्रोग्राम के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। और आप अपना ख्याल रखिए, दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, साथियों का, इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का। अल्लाह आपको बहुत सारी आसानियाँ दे, आप भी लोगों में आसानियाँ तकसीम कीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।